I would like to welcome everyone to the webinar for today, which is on drama, the unspoken language. For everyone who is new to our webinars, I would like to tell you about Emoticons India. We are a psychological counseling, testing, training, and research center. Under our verticals, we have an initiative known as Self-E. Self-E stands for self-enhancement. It is a positive, preventive psychological health education program, and it is designed for children and schools. It started with a very strong belief that it is easier to build stronger children than to repair broken men. And this essentially just says that growing children up to be stronger, to being more healthy, to having a better emotional immunity is what would help them when they are a man, when they are a woman, when they're grown up, when they have problems. So we use various therapeutic techniques and skills to facilitate children in building this emotional immunity to help them in the future. The training modules of Self-E are designed keeping in mind developmental psychology, and all the interventions are made with activities and plans revolving around play, music, drama, art, and various methods as such. These methods, they are used because they essentially involve the children within the process. It helps them to express themselves. It helps them to understand the concepts better. It helps them to apply it more effectively. Just as we have these thoughts and ideas about Self-E, our guest for today, Mr. Walter Peter, also shares the same. Peter is an artist, writer, actor, director, and the founder of La Politai India. He has been working extensively with and for children, teachers, youth, and parents for the past 28 years. With special interest in the area of writing, Peter has developed original scripts, stories, and poems. He has also directed and acted in countless plays and mega shows, as well as conducted various workshops and talks on the importance of theatre in education. He is the holder of the most school plays written and directed by an individual in the India Book of Records. So, Peter, how about you tell us what and how art plays such a vital role in a child's life? And how is drama the unspoken language? So, and art is a very important part of every child's life. In fact, I can say art is a very important part of everyone's life, especially for children, because in early age, it becomes a ritual uh, of everyone to go through different kind of exposures. स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो वो फील करते हैं, उनको फीलिंग करना आता है, उनको उनको ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग सब में बहुत मजा आता है. इनफैक्ट ड्रामा हमारे इनर सेल्फ को रिच करता है, आर्ट हमारे इनर सेल्फ को रिच करता है. और एक बच्चे के लिए एक्सपोजर ऑफ आर्ट is already there. It is already within me. I feel every child having ability to use the tool in itself, because listening is also an art. Speaking, making words, making rhyme, learning, listening, adapting the word, adapting the language, speaking, observations. I mean, all these are the arts, and this all art is already not need any language. तो कला को, आर्ट को भाषा की जरूरत नहीं है, ड्रामा को भाषा की जरूरत नहीं है. एक तो वो ड्रामा होता है जिसको हम सो कॉल्ड ड्रामा कहते हैं, जहाँ पे स्क्रिप्ट होती है, डायरेक्टर होता है, एक्टर्स होता है, ऑडियंस होती है, वो उसको हम
बहुत हद तक थिएटर कहते हैं, बिकॉज थिएटर कंप्लीट होता है एक्टर, लिटरेचर और ऑडियंस के साथ। इन तीनों के मिलने से परफॉर्मेंस क्रिएट होती है, बिकॉज परफॉर्मर को ऑडियंस चाहिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामा, drama not need any audience, because every child, every human being, उनके अंदर खुद ही उनके भीतर एक एक मूवमेंट है, एक एक्सपीरियंस है, एक स्पीच है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक थिंकिंग है। वो थिंकिंग उनको उनके भीतर एक समझ पैदा करती है, उनके भीतर एक क्रिटिकल एनालिसिस पैदा करती है। और दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द टूल, आई मीन द ड्रामा। सो ड्रामा इज वेरी मोमेंटरी थिंग। अ स्मॉल चाइल्ड, अगर आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा, तो वो खेलते खेलते हंसता है, हंसते हंसते रोता है, रोते रोते फिर हंस देता है। और जब वो अपने किसी मोमेंट में जीता है तो वो भूल जाता है कि उसको कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। उसके लिए वो मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनफैक्ट आई विल से कि ड्रामा एक मोमेंटरी मूवमेंट है, जिसपे नो लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ड्रामा कहीं एक एहसास का नाम है, और एहसास की कोई भाषा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी इनर स्ट्रेंथ को बिल्डिंग करने में, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डिंग करने में बहुत मदद करता है, तो ये एकदम सही हो। बिकॉज हमारे भीतर जो करेज है, हमारे भीतर जो सवाल है, हमारे भीतर जो जिज्ञासा है, जो सोचने की क्षमता है हमारी, उसको बल चाहिए, उसको ताकत चाहिए, उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए। ड्रामा हमारे खुद ही भीतर एक संवेदनशीलता हमारे अंदर पैदा करता है, और ये हर बच्चे के अंदर खुद ही होता है, जैसे मैंने बिगनिंग में भी कहा। सो ड्रामा से हमारे अंदर कई तरह के विकास होते, कई तरह के डेवलपमेंट्स। हमारी जो इंटरेक्शन की शक्ति है, हमारी जो टीम वर्क है, हमारे जो को लर्निंग है, जो हमारी साथ में मिलना है, वो जो एक टीम के साथ खेलना कूदना है, उस सब में ताकत है। सो ड्रामा अपने आप में ही एक खूबसूरत सा एहसास है, जिसको किसी भाषा की जरूरत नहीं है। निकुंजा, That's great. मैं So, अपनी बात कह पाया। That's nice. So, how about you tell us also about how can drama be used to express oneself? Drama can express anything, not the self. Of course. See, through drama, we can make हम नॉन लिविंग चीजों को भी जिंदा कर सकते हैं। I can become a pencil, I can become a pen, I can become a sofa, I can become a robot. I mean, ड्रामा अपने आप में इतना साइकोलॉजिकल सा सब्जेक्ट है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का तीनों पीरियड्स को हम ला सकते, एक्सप्लोर कर सकते। हमारे भीतर बहुत सारे द्वंद्व चलते, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में बहुत तरह के सेंसेस, और इन सेंसेस में हम सबको इनको निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए। सो ड्रामा हमारी एनर्जी को रिवील करता है। अनीशा, आर यू एबल टू लिसन मी? Yes, we are able to hear you. वेरी गुड निकुंजा। सो ड्रामा हमारी एनर्जी को रिलीज करता है। हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत कूदते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं, एंड उनको हम बहुत स्टीरियोटाइप शब्द में बांध देते हैं कि ये बहुत नॉटी है, या ये बहुत आई मीन हाइपर है। ऑल these words I don't know about them, but the word, but these all are energy.
सो हर चाइल्ड अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी एनर्जी को निकालने के लिए अपने फिजिकल सेल्फ का यूज करता है. सो देयर इज फिजिकल सेल्फ, इनर सेल्फ, इमोशनल सेल्फ. तो जितनी भी सेल्फ के लेयर्स हैं उन सबको ड्रामा कंट्रीब्यूट करता है और अपने इनर सेल्फ को एक्सप्रेस करने में, अपनी बात को कहने में ड्रामा बहुत हेल्प करता है. आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे बहुत साइलेंट होते हैं, बोलते नहीं, चुप होते हैं. वो उनको बहुत फोर्स किया जाता है कि वो बोले, उनको बहुत टोन्ड किया जाता है कि स्टैंड अप एंड स्पीक. यस, राइट और नॉट? Yeah, true. Please, if you will respond, it will be very good because I want to make it interactive. So, Definitely. see, I I'm think a we all theater. are engrossed in listening to you, and that is why we all are silently listening to you. Don't But yeah, engross, be participate. Come on, I'm a theater person. I want Definitely. participation because Yes. in this participation it will be very good. So I was talking about our child जो चुप रहता है और जो बहुत बंधा होता है. I mean, this is very sad. But we forget that why our child is like that. है ना? क्यों एक बच्चा जिसके अंदर इतनी एनर्जी है, जो आसमान छू सकता है, जिसकी इमेजिनेशन में ताकत है, एक बच्चा जो जिसके अरमान है, जिसके अंदर लॉट फैंटेसीज है, जिसकी जो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है, उसकी जो लिसनिंग पावर है, जिसने वर्ड्स बनाने सीख लिए, लैंग्वेज सीख लिया, जिसने देखना सीख लिया, ऑब्जर्व करना सीख लिया, जिसने पहचानना सीख लिया, जिसने याद रखना सीख लिया, वो अपने आप को रोक क्यों? सो आई फील कि उसके लेयर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस लेयर्स में कहीं बहुत सारे फियर्स हैं जो उसने एक्सपीरियंस किए. आई फील ड्रामा और हमारे जो ये सेशंस होते हैं, जिनको हम थ्रू वर्कशॉप्स करते हैं, इन वर्कशॉप्स में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, when they mixed up with the different personalities, I mean they check out themselves in others. I mean, वो बोलने वाला, ना बोलने वाला, कम बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला जब मिलकर एक ग्रुप में इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, जब वो एक दूसरे को टच करते हैं, खेलते हैं, वार्म अप करते हैं, जब वो कुछ इमेजिनेटिव एक्सरसाइजेस हमारी करते हैं, तो उनके भीतर एक एक्सप्रेशन जागता है. और इस एक्सप्रेशन को जगाने में लापोला थिएटर इन एजुकेशन बहुत मदद करता है. आई मीन, ये पूरा प्रोसेस बहुत मदद करता है. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस. आई जस्ट वांट टू टेक few names. Can I take? Yeah. The first is child drama. Child drama includes expression through the body and emotion, as well as building confidence. So child drama की जो शुरुआत है वो पीटर स्लेड इंग्लैंड में रहे हैं, उन्होंने की. तो चाइल्ड ड्रामा एक टर्म है जिसके भीतर जिस टेक्नोलॉजी को हम भी यूज करते हैं अपने काम में. इसके बाद आता है क्रिएटिव ड्रामा. सो ये दीज ऑल आर द प्रोसेस जब हम बच्चों के साथ उनके एक्सप्रेशन को बड़ों के साथ, इवन फॉर टीचर, फॉर मदर्स, फॉर फादर, फॉर पेरेंट्स, हम सबके साथ काम करते हैं. और मुझे लगता है कि आर्ट सबके लिए होता है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द different part of our work. So child drama, creative drama, curriculum drama, developmental drama. When I talk about developmental drama, I will speak on this later on. And then the drama in education. So theater in education is a different thing, drama in education is a different thing, curriculum drama is a different thing, creative drama is a different thing, and process drama is a different thing.
After that, there are many other types of drama or processes of drama which we use, like applied theater, forum theater, theater of operas. All these are the way to involve, to open, to rebuild, to rethink, to rediscover anyone's self. Yeah. वाह, ये आपने बहुत ही खूबसूरती से एक थोड़ी सी छोटी सी झलक हमें दी पूरे वर्ल्ड के अंदर की कैसा है, क्या है। अभी जैसे कि आपने बोला कि अभी तक आप थिएटर इन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, और आपने बोला कि ड्रामा इन एजुकेशन ये अलग हो जाता है थिएटर इन एजुकेशन से। तो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि ड्रामा इन एजुकेशन क्या होता है, कैसे होता है, और ये कैसे बच्चों को हेल्प करता है? See, ड्रामा इन एजुकेशन, अगर मैं इसके टर्म को यूज करूं, जो एक ऑफिशियली मुझे बोलना चाहिए कि जो एक टर्म होती है जिसको हम सब मानते हैं, so that term said the use of drama as a means of teaching a variety of content areas. It used to expand children's awareness. So awareness की बात आई, to enable them to look at reality beyond fantasy. So fantasy से reality की ओर देखने की बात आई. The objective is to understand rather than play making. हमारा इसमें जो एम है वो प्ले मेकिंग का एम नहीं है, बल्कि एक्सप्लोरेशन का एम है. Although a play may be made in the process, I mean, जब हम लोग इस तरह के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्ले भी बन सकता है, लेकिन वो प्ले एक प्रोसेस का आउटकम होता है. I mean, वो प्ले कोई रिटन फॉर्म नहीं होता, वो कोई थोपा हुआ फॉर्म नहीं होता. I mean, Anisha can make a play on her life. This is the life of Anisha. There are catharsis, there are good time, there is some technical mistake in this talk. So her mind is sometimes maybe like maybe she's happy, she's trying to come up back in the talk. So there are stages in especially between this talk. And meanwhile, Anuja coordinated, she tried to help me to carry on the talk. So this is very spontaneous drama. Yeah? Yes or no? But yes. How beautifully we three manage this talk. No? Because our purpose and goal is clear. So the objective in drama in education to introduce a process जहाँ पर बच्चों की पोटेंशियलिटी को हम एक्सप्रेशन दे पाए, उनकी इमेजिनेशन को, सेल्फ अवेयरनेस को, और वो एक्सप्रेसिव हो पाए. और इससे भी ज़्यादा बात है कि उनकी जो सोशल स्किल्स, फैमिली स्किल्स अलग होती है, सोशल स्किल्स अलग होती हैं, इंटरेक्शंस के स्किल्स अलग होती हैं, पढ़ने के स्किल्स अलग होती हैं, सोचने के स्किल्स अलग होती हैं, बोलने की स्किल्स अलग होती हैं. If we start to making a list of skills, so I'm not talking about skill India, I'm talking about skill. So there are different types of skills for a teacher, for a student, for a learner. So all these skills develop when जब उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस एडल्ट को एक प्रोसेस मिलेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली अनीशा, हमारे पूरे सिस्टम में थिएटर इन एजुकेशन या ड्रामा इन एजुकेशन या आर्ट इन एजुकेशन का प्रोसेस मिसिंग है. और जब ये प्रोसेस मिसिंग होता है तो हम सब अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते. हम जीते हैं, जॉब करते हैं, मरते हैं, खाना के लिए कमाते हैं और एक रूटीन लाइफ जीते हैं. हम अपने भीतर के उस आर्टिस्ट को, उस कला को, उस एनर्जी को मिल नहीं पाते. सो ये प्रोसेस ड्रामा इन एजुकेशन का हमें खुद से मिल रहा है. सो दिस इज ड्रामा इन एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट थिएटर इन एजुकेशन, उसमें एक्टर टीचर्स
परफॉर्मेंस बनाते हैं जो पार्टिसिपेटरी होती हैं, जिनको हम टीआई प्रोग्राम कहते हैं। हमारे देश में भी कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जहाँ पर एक्टर टीचर परफॉर्म्स करते हैं और वो स्कूलों में जाते हैं और वो अपने ऑडियंस को अपने प्ले के बीच में ले आते हैं। बट ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वर्क है, प्लान वर्क है और ये एक तरह का प्रोसेस है। ये भी एक प्रोसेस है और दोनों ही तरह के प्रोसेस से हम कुल मिला के खुद से मुलाकात करते हैं, एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। yes. जी, सो ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि ड्रामा एंड थिएटर इन एजुकेशन में डिफरेंस क्या है एंड कितना जरूरी होता है कि हम ड्रामा और ड्रामा का प्रोसेस अपने एजुकेशन में भी रखें, अपने लाइफ में भी रखें और ओवरऑल बस स्टार्ट टू एंड थोड़ा सा वो आर्टिस्ट हमारे अंदर जो है उन्हें भी जगाएं। Let me complete one thing. Yes, here I not talk only about theater in education or drama in education. I already talk about the process drama, applied theater, curriculum drama, creative drama, developmental drama, and storytelling and all. Yeah. So there are many departments, many layers to understand the process. Yeah. Right. And I'm sure that each layer and department is what comes together into giving that very clear education and that very clear enhancement for the children ahead. See, in our workshop, we never tell to parents, to anyone, what is our schedule, what is our plan. They have to trust on us because we share them about our objective. This is our objective. We want to integration, we want self-expression, we want personality development, but we never share our agenda, our plan. Why? Can you guess why? Because it's not always set, maybe. It goes in the process, something new might come. See, this process is as live as life. This kind of process is as live as life. Why I'm saying, आज तक अगर मैंने मान लीजिए 25,000 सेशंस किए, मान लीजिए, so ये 25,000 सेशंस I can't repeat. तो अगर मैं 25,000 एकवा सेशन करूंगा वो उनसे अलग होगा और हम कई बार अपने प्लान प्रोग्राम को अनप्लान कर देते बिकॉज और ये स्कूल नहीं कर पाता. I think you will be agree with me because in school if this is time you have to read economics, this is the time you have to finish maths homework, so nobody can change according to your way. Yeah, but in this process we change as per need of the group's need. So हम बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस, बहुत नीड बेस्ड प्रोसेस. हम तो ये कहते हैं कि जितने बच्चे हैं उतने ही प्रोसेस हो सकते जी, बिकॉज हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है. जी जी बिल्कुल. और यही इनफैक्ट यही हम लोग भी जब हमारे कोई भी सेशंस या कुछ भी करते हैं तो हम लोग ये जरूर देखते हैं कि हाँ चलो प्लान तो ये किया है लेकिन देखते हैं आज अंदर जाके क्या होगा. हम यही थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं कि अंदर हमें नहीं पता क्या होगा, आज बच्चे कौन से डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आज क्या हम लोग करने वाले हैं. तो प्लान तो बनाया था लेकिन अब हम ये करेंगे. वेरी ट्रू. बिकॉज यहाँ पर हमको एक बात को और फोकस करना चाहिए कि हम सिखाने वाले कौन होते हैं. I mean, who are we to teach them? I mean, who are we to give them? I mean, if somebody is closed and don't want to take, how can I put or should I hammer? Because the whole world is doing like this. Everybody is hammering
the child. Everybody is hammering the wife. I'm just changing the topic towards the adult world also. Everybody is hammering, yeah. Everybody is hammering wife. Everybody is hammering husbands. Everybody is hammering youth. Everybody is hammering. बेटा आई थिंक आप फ्रीज हो चुके हैं, सो आई डोंट नो अगर आपको हमारी आवाज जा रही है. Hello. Hello? Yes. I'm listening. I'm audible. Yes, you are. Yeah. So I was talking about hammering. Yes. Yeah. So when we hammer everyone, so nothing can be. I mean, कुछ होता नहीं उससे. जी. हम सालों साल अपने यूथ को, if you just watch the youth, to in this rat race of competition, in this rat race of study, in this rat race of commercial study, I mean, कितने मोटे मोटे बुक्स को वो रात भर चाटते रहते, पढ़ते रहते, कॉलेजेस में जाकर देखिए आप, है ना, कितना कुछ है और उसका मीनिंग और पर्पस लाइफ के साथ कुछ कनेक्टेड है. सो आई थिंक हमारा जो प्रोसेस है वो हमें एक मीनिंग देता है, हमें कम से कम एक एहसास देता है इस बात का कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी क्षमता को पहचानें. हम सब करें, हम पढ़ाई भी करें, हम डॉक्टर भी बने, हम इंजीनियर भी बने, हम IAS भी बने, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, बट हम एक ह्यूमन पहले बने. सो अगर हम एक अच्छे ह्यूमन नहीं है और फिर हम एक अच्छे नर्स नहीं है, फिर हम एक अच्छे स्वीपर नहीं है, फिर हम एक अच्छे टीचर नहीं है. सो जो ये ह्यूमन बनने की तैयारी है, जो ये ह्यूमन बनने की जो जरूरत है, इसके लिए कहीं पर मिसिंग है, कहीं हमारे फाउंडेशन में, हमारे कल्चर में इसकी मिसिंग है, बिकॉज वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं अपनी फैमिली का, नेबर का और स्कूल का. जी जी बिल्कुल. तो आप क्या बोलेंगे कि किस तरह से हम फिर ड्रामा को एक टूल की तरह यूज करके टीचिंग में इन्वोक कर सकें, और कैसे टीचिंग के और ज्यादा बेनिफिट्स साथ में ड्रामा के बेनिफिट्स भी निकाल सकें? Before I will speak on this, I will love to tell you what is teaching, what is education, why we learn. I mean, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर सवाल होंगे कि हम पढ़ते क्यों, हम स्कूल क्यों जाते हैं. 12-12 साल तक बच्चों को इसका पर्पस नहीं पता. सो जब हमें पर्पस नहीं पता, अपनी पोटेंशियलिटी नहीं पता, हम जस्ट कैरिकेचरली फॉलो करते जाते हैं, हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट किए जाते हैं. हमने बहुत सारे वी कैन से खांचा यू नो द फ्रेम बना लिया, फ्रेम बना लिया. फ्रेम इज आयरन, फ्रेम इज top in school, frame is this, frame is that, and we are pulling our child, and we are pulling and fitting in that frame, and we are
गर्ल जो हमें हमने ही उसकी परवरिश करी, हमने ही उसकी लैंग्वेज डेवलप की, हमने ही उसको अपनी फैमिली का सराउंडिंग्स दिया था जब वो भीतर थी या भीतर था. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री कंसीविंग और व्हेन वी कंसीव अ चाइल्ड. आई मीन कहाँ से परवरिश शुरू होती है. सो तब हमारे देश में 70% बच्चों को के लिए ये जो आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है ना. सो आयरन की कमी से मस्तिष्क को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, हमारे देश में हेल्थ के कितने सारे इश्यूज. See, why I will come on your point on education, on teaching and learning and use of drama in that. But let me come why we need this process in education, in school, in college, in family. Because हमारी जो physical self, हमारा जो emotional self, दोनों को food चाहिए. Yes or no? यस बिल्कुल. दोनों को फूड चाहिए. और ये जो फूड है इसका क्वालिटी क्या है, यू नो बेटर देन मी. द काइंड ऑफ वेजिटेबल वी आर ईटिंग दिस डे, द काइंड ऑफ मिल्क वी आर गेटिंग दिस डे. सो वी आर फिजिकली, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कितना वीक होता जा रहा है. सो हम इस वीक बच्चे से, हम इस वीक फिजिकल सेल्फ से, हम इस वीक इमोशनल सेल्फ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मोटी मोटी किताबें को कंप्लीट करना, खूबसूरत राइटिंग करना, नो रेड मार्क ऑन कॉपी एंड वी वांट बेस्ट मार्क्स. आई मीन वी आर नॉट हेल्पिंग अ चाइल्ड, वी आर नॉट कनेक्टिंग विद द चाइल्ड. आई मीन आई एम सो एंग्री विद द पेरेंट्स. इवन उन्हीं के बच्चे उन्होंने पैदा किया और वो जाके आपके और मेरे जैसे काउंसलर्स से या जाकर स्कूल से पूछते हैं कि बताइए मेरा बच्चा कैसा है. आई मीन हाउ ही और शी इज. आई मीन देयर ओन चाइल्ड, आई मीन दे अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड मच बेटर देन एनी काउंसलर, एनीबॉडी. बट द कनेक्शन इज मिसिंग बिकॉज उन्होंने वो जो टच होता था, वो जो हग होता था, वो जो इमोशन बॉन्ड होता था, वो जो बैठकर गपशप होती थी घरों में, वो सब तो मिस कर दिया. उन्होंने क्वालिटी टाइम मैकडोनल्ड जाना सोचा, उन्होंने क्वालिटी टाइम उसको गेम दिला दिया, उन्होंने क्वालिटी टाइम उसको बेस्ट टॉयज दिला दिया. बट कभी उसके साथ बैठकर किसी कबाड़ से जुगाड़ को नहीं बनाया. आई मीन कुछ ऐसा नहीं किया जो जब उनके भी और बच्चे के भी हाथ मिट्टी में सने हुए, जब दोनों ने मिलकर एक पौधे को प्लांट किया. आई मीन 30%, 10% really want their child grow in all the aspects. Now I will talk about the need of this kind of process in school. See, in school, the whole system is divided in 40 minutes period. 40 minutes math, 40 minutes science, 40 minutes this, 40 minutes that, 40 minutes that, and one break. And after that, there is a chutti. I mean, and in India, whether it is a DPS or a municipal school, in whole India, when जब स्कूल की घंटी बजती है, छुट्टी बैल होती है, हर स्कूल में हल्ला होता है. Yes or no? Yes, absolutely. अच्छा, I will share 2-3 points here. हर स्कूल में हल्ला होता है. वाह, ऐसा छूट गए जैसा जेल से छूटे. Yes or no? Yes, और गेट के बाहर भी वैसे ही भागते हुए आते हैं. वैसे ही भागते हुए आते हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ से निकल के आए. Because the whole body was, the whole mind, इतना स्ट्रेस था उनको पूरे दिन स्कूल में, क्लास में, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए. और इससे रिलीफ मिलता है. ये बेल बजती है ना जब स्कूल की, इवन द
सबसे मुश्किल सब्जेक्ट की जब बेल बजती है तो रिलीफ मिलता है, ओ दिस पीरियड इज ओवर, नाउ दैट पीरियड विल कम. सो सी, even in school, all teachers are not like same. There are many beautiful teachers. I mean, there are teachers who involve student in class, who give respect to a child. The problem is that we not give respect to child in home, we not give respect to child in class, in social surrounding. अब आप देखिए, अगर आप कभी बस में जाते, एक बच्चा बैठा है तो कोई बड़ा आएगा बोलेगा चल तू साइड में हो जा, मुझे बैठने दे, तो उस बच्चे का तो कोई राइट ही नहीं है. आई मीन, पहले रेलवे में बच्चे को 50% कंसेशन मिलता था, यस और नो? अभी तो फुल टिकट लगता है. तो चाइल्ड का रिस्पेक्ट खो रहा है, चाइल्ड का रिस्पेक्ट खो रहा है बिकॉज वो वोटर नहीं. सो इफ अ चाइल्ड नॉट वोट, it means not that government will not think about a child. So वो जो मैं 40 मिनट्स के पीरियड्स की बात कह रहा था, वो जो मैं रिलीफ की बात कह रहा था, ये थिएटर इन एजुकेशन और ड्रामा इन एजुकेशन पूरे सिलेबस को जिंदा कर सकते. यू नो, हम, आप मुझे बताइए कोई ऐसा विषय है जिसमें हम अपने हिसाब से आंसर दे पाए? कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आंसर हम करके दिखा पाए? ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं. हमें दो ही तरह से बताया जाता है, या तो ओरल या फिर राइटिंग. यस और नो? सो ड्रामा, ओनली द ड्रामा लापोला थिएटर इन एजुकेशन, ये जो प्रोसेस है इन्वॉल्व होने का, उठकर करने का, ये करिकुलम को जिंदा कर दे. आई मीन, हम बायोलॉजी के किसी भी एक सब्जेक्ट को जिंदा कर सकते हैं. देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड रेन साइकिल. रेन साइकिल इज देयर? Yes, the water cycle. द वाटर साइकिल, या. एंड आपने भी बनाया, मैंने भी बनाया, जिंदगी भर हमने उसको कागज पे बनाया. यस और नो? टू गेट अ वेरी स्माइली फ्रॉम टीचर. यस, ऑन द टेक्स्ट notebook. So, and we copy it from the textbook, and we made it, we submitted it, madam give us smile and we are so happy, we done it. No, now drama start. See, I can become cloud, you can become river, someone can become mountain, we can make live this image, we can talk about it. So TIE, theater in education, can replace the whole textbook into action. See, you know the famous proverb, I see, I remember, I hear, I forget, I do, I understand. Yeah? Yeah. So this doing is very important. See, Anisha, did you remember the name of your childhood friends? Yes. Can you take two names? Two names of my childhood friends would be Jennifer and Nikita. Okay, here is, I am looking someone, Pooja Oswald. Are you hearing Yes. me, madam? Can you open your audio? One second, yeah. Can you hear me, sir? Yeah. Yes. Are you yes. Pooja? Hi. Yes, I am Will Pooja. you I'm please Pooja. tell me 2-3 names of your childhood friends? Oh, I can say many actually. I'm in touch with all of them. All of So- them. Very good. Sharyu. Yeah. Yes, tell me. Yeah. Here is someone, Anu also. I'm watching the Anu. Yeah. Hi Anu. Can you take 2 or 3 names of your childhood friend which you love them? Yeah. No? Anu, your voice is close. Okay, it's fine. I'm talking to you, Pooja. Yeah? Yes, Pooja? yes, sir. Now you please tell me what was the name of first lesson of your 6th class of English book. I'm not going to remember that. So are you getting what I was saying? I'm getting the point, sir. Yes. So We are taking kids away because from the originality. the original, not only originality, but the connection. Yes.
they just going through the stuff. They not loving their books. जब हमें किताब मिलती थी हम उसको उसकी खुशबू को फील करते थे. Yes or no? Yes. Yeah. And Yes, I remember. we already remember all these poems जो हमें बचपन में और दिल से हमें सुनाई गई थी, दी गई थी. So I feel कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत जरूरी है. और हमने तो बहुत सारे चैप्टर्स को प्ले में बदल दिया है, पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम में बदल दिया है. अनीशा, are you hearing me? Yes, I can hear you. Let me explain you one more example of that. There is a chapter in NCERT book about loin, and this is I always share this. This is that loin. Are you watching it? Yes. Yeah. This is the loin. His name is Babu. Say hi to him. Hi. Say hi. Yeah, hi Anisha. So in that storytelling, we use a technique called teacher in role. Okay? Teacher in role. You will find out about it. It's very famous technique. I've done these stories and I collected more than 10,000 letters for Bagu and 10,000 photographs made by the children or adults for Bagu. And you know the best thing which maybe NCERT not knows, that कि 10,000 के 10,000 बागूस के फोटोग्राफ बिल्कुल different. Not even a single photograph match from each other. Why? Because मैंने उनको ये नहीं कहा कि इसे बनाइए. जी. When I told them draw it, draw this, do this, तो उनके खुद के बागू कभी नहीं बन पाते. Yeah, are you agree? So we not give them task to children in our process of education, where their imagination, their language, their own thinking, their own action involved. So in our process, we involve them. हम लोग पूरी किताब को जिंदा कर देते. ऐसे ही हमारा एक प्ले है बैरकपुर से लाल किला. What is the name? क्या आप रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा आवाज? बैरकपुर से लाल किला. बैरकपुर से लाल किला. So बैरकपुर जहाँ पे 1857 में मंगल पांडे ने बिगुल बजाया था, और लाल किला जहाँ पे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने फ्लैग होस्टिंग किया. या बट इन दोनों के बीच में इतने सारे हीरोज हैं, इतने सारे लोग हैं जिनका किताबों में केवल जिक्र आता है और कभी हम उनसे मिल नहीं पाते. हम उनको पढ़ते तो जरूर है पर हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. हमें झलकारी बाई के बारे में नहीं पता, हमको ज्योतिबा फूले के बारे में नहीं पता, हमको सावित्री बाई फूले के बारे में नहीं पता, हमें उन हजारों आदिवासी ट्राइबल लीडर्स के बारे में नहीं पता जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया. हमें उन राइटर्स के बारे में नहीं पता जिन्होंने अपनी राइटिंग से लोगों को मोटिवेट किया. हमें उन सिंगर्स के बारे में नहीं पता, हमें उन ड्रामेटिस्ट के बारे में नहीं पता जिन्होंने उस जमाने में हमारे देश के लिए ड्रामा के फॉर्म में लोगों को चुनौती दी. आई मीन सो हमारे इस पूरे प्ले को हमने करिकुलम से लिया और करीब 900 लोगों ने मिलकर इस प्ले को बनाया. एंड यू नो इन 5 स्कूल, 5 स्कूलों में मैंने पूरे स्कूल को लेकर बड़े स्टेज पर 80 फीट बड़ा स्टेज पर पूरे स्कूल को लेकर इस प्ले को बनाया. एंड विद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि हमने टीचर्स और बच्चे को मिलाकर ड्रामा बनाया. जब आप टीचर्स को भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर देते हैं तो दोनों के रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं, दोनों को लर्नर बन जाते हैं. सो अगर
टीचिंग का सबसे बेस्ट तरीका है को लर्नर। जी। आई मीन वन ऑफ माय बेस्ट टीचर से जब भी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें ये बताइए, सो वो बोलते हैं आई डोंट नो, लेट्स एक्सप्लोर। सो दैट इज ऑल्सो अ वे, बट द प्रॉब्लम विद द एडल्ट वर्ल्ड इज कि हम सारा ज्ञान निकाल देते हैं। जैसे मैं अभी बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, है ना? दिस इज नॉट द वे। वी हैव टू पार्टिसिपेट, वी हैव टू गिव एंड टेक, बिकॉज उससे हमारी इस टॉक में रिचनेस आए। एंड यही हमें थिएटर और थिएटर का प्रोसेस सिखाता है कि इट्स अ टीम, द होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ अ टीम। अगर एक दिन सन को छुट्टी मिल जाए फॉर अ फ्यू सेकेंड, द होल यूनिवर्स विल बी dead. Yes or no? Yes. So, yes. so the whole, we all are a team. So if we are team, so that give and take is very important. So in our plays, हम बच्चे और टीचर्स को मिलाकर प्ले बनाते हैं और दोनों को मजा आता है परफॉर्म करने में। हम स्कूल के मालिकों को बोलते हैं आप भी एक एक रोल कीजिए, स्कूल के प्रिंसिपल हमारे प्ले में रोल करते हैं। और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा मैंने अब तक करीब 20-20 प्लेज ऐसे किए हैं जहाँ पर पूरे पूरे स्कूल ने परफॉर्मेंस की। आई मीन आई एम मैड फॉर दैट, टू इन्वॉल्व सच ए ह्यूज नंबर। आई मीन पीपल से दिस इज नॉट ड्रामा, आई से फॉरगेट ड्रामा, द बेस्ट थिंग इज दैट इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, मेकिंग फेस्टिवल ऑफ आर्ट, विच इज वेरी या। Yes, very true. And जैसे कि आपने अभी बोला कि हम सब साथ में हैं, हमेशा साथ में करना चाहिए एक्चुअल वो पूरा एसेंस निकालने के लिए, तो क्यों ना हम अभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों के साथ कोई एक दो टेक्निक्स करें या कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर सके, ताकि सब लोग साथ में छोटा सा एक ड्रामा या एक क्वेश्चन कुछ कर सके अभी सबके साथ। Okay, I will try. Just do this. Okay. Just follow. Yes. I would also like to say everyone, please do participate. Please switch your videos on. हम सबको दिखाइए कि आप भी कर रहे हैं. Do this. Yes. Now, close together. Okay, let's see in digital world we can. It's possible. Okay. Together, huh? Together. The theme is togetherness. Swapnil Nagar. Together. Okay. Now do big face. Big face. Big. Big face. No. Your face is very small, Anisha. Come on. Big face. Big. Small. Small. Big. Small. Let me do a Lapola activity with you. Okay? This is my Lapola cat. Okay? Okay. Now I become Lapola. Say, whatever I say, you have to repeat. Okay? Hot or pop pop. Hop 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 hop. Hot or pop pop pop. Hop 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 hop. Everyone. Hot or pop pop pop. Hop 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 hop. Hot or pop. Hot or pop 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 pop. Hot or pop. Hot or pui. Hot or pop. Hot or pop 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 pop. Hajara pachara khachara pachara pachara papa pa. So one more activity I will love to share with you very quickly. What is this? Anyone, everyone take something. Something. Like this. Anything. Marker. Now I'm
Okay, I'm giving two challenge to Pooja. Pooja, are you watching? I can hear. Yes. Yeah, Pooja, I'm giving you challenge that I'm using like a comb. Hmm. Okay, Hmm. how can you use? Now, Pooja, please It's bring like Pooja on it's like knitting screen. needle. It's like Huh? knitting. It's a needle. Okay, I'm knitting. now giving challenge to someone else. Okay, Anu. So I am knitting with it. What are you going to do with your thing? Yes, Anu, make something. Okay, I'm done knitting Make the something. sweater. The sweater is over. So, uh, okay. Anisha, can I come back? Yes, yes, I'm here. So one props, different use. Yes, Hello, yes. Just hello a minute. everyone. Can Please can close. everyone please Yes, yes, mute yes. themselves again? Yes. Yeah. Wonderful. So one props, different use. Acha, I can make cell phone. I can make comb. I can make lipstick. I can make torch. I can short fight. How this idea is coming? Because my brain is coordinating with my thinking. When we give this task to children, to youth, to teachers, they also become innovative. Yeah, they also innovate the idea. This is just a small prop. We can use thousands of props like balti, chadar, pillow. I mean, we can play this game in our family. I mean, you can please. I will request you each and everyone. With your family and see how it's beautiful. I mean, it's I'm so sorry. I cannot. your family. I mean, you can change the props always. Yes. I'm sorry. You were cut off a little bit in the middle. Me, Yes. I said I'm sharing this. This was only a marker, but you can use different props and use in with your colleagues, with your friends, in office, in home, in classroom, in office. Why? Because it gives you spontaneous idea. It's make you creative. It enhance your expression. It 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 not only enhance your expression, but it also shows that how much creative you are, how much your body is coordinating with your thinking power. So when I mean एक खेल के भीतर कितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं. So Anisha, I have 600, more than 600 games like this. Can we all play? Yes, absolutely. I think it is so beautiful and जैसे कि आपने बोला क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, सब साथ में रह सकते हैं तो वो एक टुगेदरनेस होता है. आई थिंक एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो होता है इसमें वो ये है कि कहीं से भी कोई किसी और को कंट्रोल नहीं कर रहा है कि आपको क्या बनाना है. तो एक वो सेल्फ में वो पावर भी आता है कि हाँ यहाँ कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैं खुद से मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ. तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी आ जाता है. We can't change anyone through argument. Yes. Yeah, we can't change anyone through argument, but we can change a person through listening, through involving him or her in a process, in some kind of process. So that's the way. Physically involved, because काम करने से बहुत मजा आता है. आप बैठे रहेंगे, बैठे बैठे आपका इनर तो बहुत काम करेगा, पर आपका फिजिकल काम नहीं करेगा. So I will request to each and everyone, involve everyone physically, because physical होना बहुत से बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. Yeah,
See. I'm not doctor, but I'm just saying because physically fit होना is very important. Yeah. Yes. एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर अपनी वर्कशॉप्स ग्रुप्स में करते हैं और बहुत बार जिस बच्चे का टर्न आता है वो कुछ नहीं करते. Are you listening? Yes. Suppose हम नेम गेम खेल रहे हैं, है ना? I'm saying Peter, you are saying Anisha, but then Pooja's name comes and Pooja not speak. So हम उसको छोड़ देते हैं. Why? Because हम हर नाम को repeat कर रहे हैं. So Pooja is more interesting in repeating everyone's name rather than speaking her name. But a day will come when she will involve her to, she will get that courage that she will speak her name. So क्या होता है, बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि धीरे धीरे रमणा धीरे सब कुछ होए. धीरे धीरे रमणा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा. माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. एक फल के पीछे 100 घड़ा चाहिए, माली चाहिए, ऋतु चाहिए. See, malis depend on ritu, और trees depend on घड़ा because पानी चाहिए उसको. So nurturing is very important, not the result. Yeah. Yes. Very beautiful saying. अभी एक क्वेश्चन आया है मुझे प्राइवेटली और वो पूछ रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के साथ हम ऐसे गेम्स यूज कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. तो ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप है क्या? See, we play this kind of things or tricks or games with everyone. Follow the leader is very good activity. See, I am following and you are just following me. So follow the leader. So one person is leader and everybody is following the same person. That is also activity. And not only physical activity. Hello? Not only the physical activity, there are many types of activity. There are drawing is in itself is an activity. हम बच्चों को आज डरते हैं water color देने से. But in our workshop, we give them watercolor only. Why? Because वो उसको फैलाते हैं, वो उसको गिरा देते हैं, वो उससे गंदा कर देते हैं. तो हमने उसके लिए आसान रास्ता निकाला है समाज ने, सोसाइटी ने, कि सब उनको क्रेयॉन पकड़ा. अब क्रेयॉन पकड़ाने से वो एक्सप्रेशन नहीं आता जो वाटर कलर से आता. बिकॉज वाटर कलर आपको बैलेंस करता है, आपको ब्रश और कलर के बीच में कितना पानी लेना है इसके लिए तैयार करता है. और जब आप इस बात का एहसास जानते हैं बचपन में कि कितना वाटर, कितना कलर, कितना स्ट्रोक यूज करना है, तो ये आपके भीतर का एक विकास होता है. आपके अंदर के लेयर्स डेवलप होती हैं, आपके अंदर का हाथ का कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है. सो नॉट ओनली फिजिकल गेम्स, बट देयर आर मेनी गेम्स. यस, you can involve any kind of children, any kind of age. जैसे मैंने आपके साथ किया, तो आप तो बहुत छोटी नहीं है, तो छोटों के साथ करेंगे तो उनको और मजा आएगा. बट हमारे वर्कशॉप्स में there are certain stages we complete. We start from me and we end with we. This me to we is our concept. Me to we. Me to we is our concept. Yes. In this between me to we, there are different types of topics like our family, our society, our education system, myself, my inner, my outer, my dreams, my likes, my dislikes, and we can express everything in different forms of arts, not only physical, but through drawing, through poem, through drama, through writing,
through book, through making play. There are many forms to express, but art is very important. The core is art. Art. Yes. Yes, I think any medium, if any child from any age group gets a medium which he or she is comfortable in expressing using, then that is what is needed. And that is what will help that child grow within himself. And that is what will help that child later on being in that society with everyone else and being together. Yeah. And it is True. always said, he first start with yourself and then go ahead. And then become See, one. I believe that every child born with many possibilities. We are the culprit. We are the हम लोग हैं वो बड़े जो उनकी ये possibilities को limit कर दें. जी जी उनको जब उनके खुद का एक फ्रीडम और कंट्रोल देंगे उनके लिए, तभी तो वो आगे जाके फिर अच्छे से अपने सारे पॉसिबिलिटीज को ढूंढ सकते हैं, वेंचर कर सकते हैं. और But do you know, Anisha, the challenge is that the adult world never understand all this. They like it, but they not understand because they never give freedom to children. They admit it that we will give that freedom, but they having lot of fears, lot of stereo kind of thinking. I mean, really, they say, but they not do. They are very sharp. So I not trust on adult world. I trust on the children's world. Right. Yes. And I think to open the adults up to something like this is why we have such webinars and such discussions, ताकि वो थोड़ा awareness बढ़ सके, ताकि वो थोड़ा सा acceptance आ सके. And for that, Anisha, we do parents workshop. We do sessions for parents. In our parent session, when parent go, when parent comes, and when parent went back, totally different personality. Wow. I mean, they rediscover themselves that they are father, they are mother. Many father, I'm sure, many father अपने बच्चों को नहलाते नहीं, छोटे बच्चों की बात करें. और या हम ये नहीं कह सकते कि मम्मी उन्हें मौका नहीं देती. I mean, we can't escape, but उनका इंटरेस्ट ही नहीं. हमने उनको मैन और विमेन की सो कॉल्ड बाजारी थिंकिंग में स्टीरियोटाइप बना दिया. Yes. So I think that's we do parent session for adults. We do teacher workshop to make that team bonding in the school, to understand childhood and their perspectives. जी जी अनु, काफी इम्पोर्टेंट भी होता है वैसा करना, वैसा स्टार्ट करना. कहीं से स्टार्ट होगा तभी तो आगे बढ़ेगा. तो थैंक यू फॉर स्टार्टिंग समथिंग लाइक दैट, फॉर शोइंग पीपल, फॉर having even adults, even parents have that exposure to the theories and the concepts of drama. तो अभी क्योंकि टाइम काफी आगे बढ़ता जा रहा है, मैं एक्चुअली हमारे ऑडियंस के लिए ओपन करूंगी कि आप अपने प्रश्न पूछें. आपको अगर कुछ और पीटर से जानना है तो आप प्लीज खुद को अनम्यूट करें, अपना वीडियो ऑन करें अगर आपको सही लगे तो, और प्लीज आप पूछ सकते हैं. Anyone? ठीक है, तो मेरे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन अभी अभी आया था किसी से. वो पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, किस तरीके के बुक्स एक बच्चे को पढ़ने चाहिए या उन्हें पढ़ाने चाहिए. कोई ऐसा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्या जिससे उनका इमेजिनेशन, ड्रामा, एक्सप्रेशन इंक्रीज हो सके? I can give this answer in two ways. One, why book? And second, why not book? Yeah.
But for why book? Because before book, you give that child an environment to explore, because हर बच्चे में वो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी होती है. आप उसको बताइए कि उसको एक बर्ड का नेस्ट बनाना है, अपनी खिड़की पर जरा लगाइए तो, बिकॉज जब वो नेस्ट लगेगा और उसमें बर्ड आएगी तो ये महीनों महीनों का रिलेशनशिप डेवलप होगा. ये क्रिएटिविटी है. आप अपने बच्चे को बोलिए कि लेट्स प्लांट अ तुलसी, आप अपने बच्चे को बोलिए लेट्स प्लांट मनी प्लांट और समथिंग. सो वो जब पौधा डेवलप होगा तो ये सालों साल का रिश्ता डेवलप होगा. उसकी क्रिएटिविटी, उसकी फीलिंग्स स्ट्रांग होंगी, उसकी सक्सेस उसको दिखेगी कि उसने कैसे एक बीज बोआ था. किताबें जहाँ तक रिकमेंड करने की बात है, ये बाद में आती है. और बच्चों के लिए मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत किताबें, एकलव्य, डिड यू हर्ड अबाउट एकलव्य? एकलव्य इज अ वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशन. एकलव्य की किताबें जो साइंस को बहुत बढ़ावा देती हैं, इनोवेटिव हैं. एकलव्य के अलावा एक साइकिल करके हमारे एक मित्र हैं, उनका एक पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए, सुशील शुक्ला से नाम है उनका. मैं पर्सनली ऐसे जानता नहीं उनको, बट आई नो कि वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिटरेचर लिख रहे हैं. भोपाल बेस्ड है ये सब लोग. एकलव्य का पब्लिकेशन बहुत फेमस है. गीजू भाई की अगर आपको कहीं से बुक्स मिले तो वो बच्चों के क्या बड़ों के काम की हैं. एक्चुअली किताबें हमें बहुत कुछ देती हैं. किताबें हमें बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड. आई रिस्पेक्ट बुक्स, आई हैव लॉट ऑफ बुक्स एंड आई लव बुक्स. बट हम बच्चों के लिए अक्सर ये भी कहते हैं कि जो निज़ा फाजिल ने भी बोला है कि बच्चों को उनकी दुनिया में कुछ खिलने दो, कुछ खुलने दो. बच्चों को उनकी दुनिया में कुछ खिलने दो, कुछ खुलने दो. 2-4 किताबें पढ़ देंगे तो हम जैसे हो जाएंगे. आई मीन किताबों से ज़्यादा है जिंदगी. पर हाँ, अच्छी किताब देना भी बहुत ज़रूरी है. बहुत खूबसूरत सवाल था, मैंने दोनों तरह से उत्तर दिया. Sir, I have a question. हम लोगों ने बच्चों को खुल के जीना, फ्रीडम देना, इंडिपेंडेंट लर्निंग सिखाना, उनकी ओरिजिनलिटी बरकरार रखना, ये सब चीजों के बारे में बात की. बट एक ये भी होता है ना कि हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं जिसके अंदर बच्चे फ्रीली एक्सप्लोर कर सके. So how do you get that guidance or a sense of discipline also along with freedom? Because मैं मानती हूँ कि freedom जरूरी है, but guidance भी जरूरी है. So how can you combine these two when you are teaching through drama? See, drama is very disciplined subject. It start with discipline. सबसे पहले आपको ये बता दूं, हमारी क्लासेस में बच्चे कभी लेट नहीं होते. Yeah, right. Why? So, yeah. You know why? That is You know my why? question. I mean, let me complete. You know why? Because that they enjoy spark, it so much. they enjoy it. They know the meaning. Yes. Second, जब आप एक सबसे ना बैठने वाले बच्चे को गौतम बुद्ध का रोल दे दें और उसको पूरे प्ले में शांत बनकर बैठना हो, तो क्या वो नहीं बैठेगा? अगर वो बैठता है तो वो ये जानता है हाउ टू स्टॉप, हाउ टू स्टार्ट. So how to stop and how to start, where to speak and where not to speak, that is actually these all are the pedagogy of learning. हम बिल्कुल डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं होते हैं ड्रामा वाले. हम हल्ला जरूर मचाते हैं, हम बहुत जोर से बातें करते हैं, हमारी क्लासेस में आपको कैथारसिस बहुत मिलते हैं, बट हम एक बैलेंस पर्सनालिटी को ही रिस्पेक्ट करते हैं. हम जानते हैं कि हम कितनी देर देखिए मेडिटेशंस में भी बैठते हैं, हम शांत होते हैं. तो हर बच्चे को हमेशा खुदकने के अलावा शांत बैठना भी आना चाहिए. सो दैट बैलेंस इज वेरी मच नीडेड.
पूछा जाए. Right. Yeah? Yes, sir. Thank you so much. To give you. You gave me a perfect answer, because बहुत बार when we talk about, I am a child counselor, and when we talk about freedom, people miss out thinking that we don't respect discipline and structure. So that is why I wanted you to answer this. Thank you. आई थिंक जैसे कि पीटर ने बोला अभी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे डिसिप्लिन भी एक पार्ट होता है. एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, एक बार हम बच्चे को वो एक फ्रीडम दे देते हैं, वो एक ओपननेस ऑफ एक्सप्रेशन दे देते हैं, उसके बाद उन्हें खुद में जब वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो खुद ही अपने अंदर डिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिकली बस वो आउट थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल चाहिए कि हम खुद का लाइफ खुद की तरह रह सके. तो जो थोड़ा सा भी टाइम हमने वो एक्सप्रेशन का दे दिया उन्हें, उसके बाद वो खुद ही थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो बोलना था, जो करना था, वो कर लिया. Yes. Actually, उनका आई सेटिस्फाई हो गया. यस Yes. True. यस. और किसी को कोई सवाल, कोई प्रश्न? ओके, एक और क्वेश्चन मुझे आया है प्राइवेट बॉक्स में. हाउ कैन वी यूज थिएटर? आई एम सॉरी, क्या आपको कुछ पूछना है? आत्मान अकेडमी. Yes, yes. Hi. हेलो. Hello, Walter. नमस्ते. बहुत अच्छा सेशन. Hi, कैसे हो? हाँ, एकदम बढ़िया. How are you? मजा में? I'm very मजा में. चौकस. एकदम चौकस. Good to see you after so many years. हाँ. See, I see you always in sari and in Hindi, so sorry. See, I am also like. अच्छा, मुझे आपसे एक बात, आप बिल्कुल आपने जैसे कहा वैसे इनफैक्ट तो हम बहुत ही इंक्लूसिव हैं. हमारे मौसी हमारे ड्रामाज में पार्टिसिपेट भी करते हैं. जैन को किया, सब ने पार्टिसिपेट किया. बहुत करते हैं. आई इनफैक्ट एंड शरयू, हम सब ड्रामा सिखाते हैं स्कूल में. फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू द यूज ऑफ. ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत हैं रेटिसेंट रहते हैं, जो मतलब बात ही नहीं करते, तो कभी कभी उनको हमें मालूम है अगर एक बार चख लेंगे तो अच्छा कर लेंगे. Can you tell me what we can do for helping those? I'm so happy that you are asking me, because you know the answer. I know that you know the answer, but that is good. But you bring this on this platform, a very nice question. See, one thing very important. The process. Manjushri, I know you. I had very nice time with you in Nagpur. You remember that? Yes, yes. I have told all my team members, I told all of them, आप जो भी कोई फ्री हो, because सबके क्लासेस चल रहे हैं अभी, आज के दिन भी 10th स्टैंडर्ड के क्लासेस चल रहे हैं बच्चों के, तो मैंने उनको बोला जो भी फ्री हो आप प्लीज ज्वाइन हो जाओ, because Walter is somebody worth listening to. बिल्कुल सुनना ही है. मैं तो सब ठीक ठाक करके बैठी हूँ सुबह से. मैंने कहा I have to listen to Walter after 15 years, almost 15 years. Yeah. Yes. Thank you so much for giving me that compliment. Let me come on the point. Okay. So Yeah. The point is this, कि वो जो बच्चा नहीं बोलता है, चुप रहता है, पीछे होता है, आपको भी मालूम है उसका एक कारण नहीं है, उसके 5 कारण हैं. उसकी फैमिली एक कारण है, उसका एनवायरनमेंट एक कारण है, एक क्लासरूम एक कारण है, कुछ टीचर उसका कारण है, वो खुद भी उसका कारण है. तो कारणों की एक लंबी लिस्ट है, और जब इन कारणों की लिस्ट को हम एक वर्कशॉप के थ्रू वी विल गो थ्रू. एक्चुअली वो बच्चा रिलीव नहीं हुआ है बहुत सालों से. वो फूट कर रोया नहीं. देखिए, रोना एक अलग बात है,
मैं आई नॉट सपोर्ट रोना, बट अगर रोना खुशी देता है तो वो बहुत अच्छा होता है. इनफैक्ट वी यूज्ड सो मैनी सेशंस, वेरी इंटेंसिव सेशंस, जहाँ पर हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और वो अपनी परेशानियां शेयर करते हैं. देखिए, अपनी परेशानियां कहाँ पर शेयर की जाती है मंजुश्री? ना प्रिंसिपल को शेयर की जाती है, ना टीचर को शेयर की जाती है, ना दोस्तों को शेयर की जाती है. अपनी परेशानी अपने आप को शेयर की जाती है. सो उन बच्चों को एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो बहुत पॉसिबल है हमारे काम में, जहाँ पर वो खुद से बात करें, अपने बारे में लिख पाए, अपनी स्टोरी लिख पाए, अपने, और वो अपने आप को दूसरे वाले के साथ एसोसिएट कर पाए. बिकॉज एसोसिएट करने से अपनी प्रॉब्लम छोटी लगती है, सामने वाले की प्रॉब्लम बड़ी लगती है. हमारे बहुत से सेशंस में वो बच्चे जो मैं प्रॉब्लम शब्द गलत यूज कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, बट वो बच्चे जिनके साथ इशू था वो दूसरों के इशू सॉल्व करने में लग गए और अपने इशू उनके कब के निकल गए. सो आई मीन, सो जब आप उनको वो एक टास्क देंगे कि यार तुम्हें तो ये करना है, तो वो कहेंगे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई एम अ डम, आई एम स्लो लर्नर, आई एम दिस काइंड ऑफ बॉय, आई एम शाई. Who said shy? Mama said I am shy. Who said shy? My maths teacher said I am shy. So that all labels are there. We have to release one by one all the layer, and that beautiful child will come out. Yeah, I think मंजुश्री जी, आपका बहुत खूबसूरत सवाल था और ये आपको ऑलरेडी पता था. आपको सिर्फ टीचर को बुलाना है, वो आप नहीं करते. सर, कोई सवाल? सर, शरयू जादव हियर फ्रॉम आत्मन एकेडमी. मैं पूछ सकती हूँ? कोई पूछ रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन है ये. एक्चुअली आपने जो सेशन आज किया उसके थ्रू हमें ये भी समझ में आया कि वर्चुअल क्लासेस में क्या कर सकते हैं. मतलब इतने छोटे से प्लेटफॉर्म पे, इतने छोटे से स्क्रीन पे भी आपने हमें नचा दिया, हिला दिया. सो ये तो सीख हुई. और क्या कर सकते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम, हमारे क्लास हमारे बच्चों के लिए ले रहे हैं, इंक्लूडिंग सब स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? और कुछ आइडियाज जो, अगर मैं अभी मराठी सिखाती हूँ बच्चों को, तो बड़े बड़े लेसन्स है, पोएम्स है, कभी कभी बोरिंग हो जाता है. जैसे अभंगवाणी वगैरह है तो तुका बचा अभंग वो चल जाता है, वो मस्त हो जाता है. लेकिन कुछ लेसन्स है जो बच्चों को बोरिंग लगते हैं, तो क्या कर सकते हैं उनके लिए? ऑनलाइन. I'm not expert of virtual. No sir, आप छोटे से ड्रामा के टिप्स छोटे से और मिल जाए ना तो बात बन जाएगी. See, first of all, वो लेसन मत पढ़ाइए अभी आजकल, बहुत बोरिंग है. That's a good idea, sir. You've given a very good idea. Yes, sir, absolutely. वो अभी नहीं पढ़ाऊंगी. और सेकंड, मेरे बेटे के स्कूल कुछ कर रहा है, वो बच्चों को फूड मेकिंग, आई मीन उनकी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहा है. तो हर बच्चा अपने लेसन को मोबाइल से शूट करके ड्रामा बना के भेज रहा है. हेलो, तो वो मान लीजिए आपकी पोयम में कोई बर्ड है. सो एवरी चाइल्ड घर में अपने आप को वो बर्ड बना के, अपने आप को पहन कर वो बर्ड बन के, वो बर्ड बन के वो पोयम सुना. आई मीन आपको केवल वर्चुअली उसको अपने मोबाइल पर मंगवाना है हर बच्चे से. आप हर लेसन को, हिस्ट्री को, साइंस को, आप उनके प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं, मजेदार. आई मीन छोटा प्रेशर मत दीजिएगा ना कि इसके 5 मार्क्स आएंगे, इसके 25. नहीं. यस, तो वो उनको लगेगा यार हम तो फिल्म मेकर बन सकते हैं. बिकॉज चिल्ड्रंस आर मच गुड मोर देन अस ऑन मोबाइल एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजी. यस मंजुश्री जी.
Yes, Anisha. yes, True, yes. true. Very true. Thank you, sir. Thank you. Thank you. What a lovely answer. Yes. Okay, thank you everyone for asking your questions and बहुत बहुत अच्छे questions भी आए हैं आप लोगों की तरफ से और and I would just like to say that I am really thankful to all of you for even attending this session and हम लोग overtime जा चुके हैं actually तो जो एक दो और सवाल हैं जो अभी हम पूछ नहीं पाए और बाकी जो chats में कुछ सवाल हैं वो अगर पीटर जी को ठीक लगे तो मैं उनको बाद में फिर जल्दी से कर सकते जी एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बाद में भेज देती हूँ और फिर वो उनके आंसर्स या तो मुझे टेक्स्ट में भेज दीजिए या ईमेल में भेज दीजिए और मैं सबके साथ फिर शेयर कर सकती हूँ। जी तो वैसे हम लोग फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम वैसे एंड बाद में आपको आंसर्स दे देंगे और यू कैन कीप another session. Yes, we can see if there's another session that can come up somewhere. Let's see. But definitely, it was absolutely wonderful having you here with us. And एक request है हमारे व्यूअर से वो पूछ रही है कि ये सेशन एंड करने के लिए can you please give us a शायरी? So we will conclude this session with one शायरी. Oh my God. Which शायरी? सबसे अजीब दिन उस दिन मेरे स्कूल में होता है जिस दिन मेरे पेरेंट्स की मीटिंग मेरे टीचर से होती है। सबसे अजीब दिन उस दिन मेरे स्कूल में होता है जिस दिन मेरे पेरेंट्स की मीटिंग मेरे टीचर से होती है। इन तीनों के मिलने पर मेरा शहीदी दिवस बनता है। इन तीनों के मिलने पर मेरा शहीदी दिवस बनता है। उस दिन मम्मी बाल बड़े ढंग से बनाती है, पापा को अच्छी वाली शर्ट पहनाती है, मुस्कुरा कर टीचर मेरी सारी गलतियां बताती है। मुस्कुरा कर टीचर मेरी सारी गलतियां बताती है। दबी जुबान पर दोनों की उसी वक्त मुझे डांट पड़ती है और मुस्कुरा कर टीचर मेरी उस दिन बाय करती है। पीटीएम था इसलिए सुंदर वाली साड़ी पहनकर आज आई थी, प्यारी सी बिंदी भी आज नई वाली लगाई थी और दिन तो बस काम चल जाता है क्योंकि कोई भी शोकेस नहीं हो पाता है। लेकिन पीटीएम के अगले दिन जब मैं अपने बाकी दोस्तों से मिलता हूँ तो सबकी कहानियां सेम सी लगती है। अब अगला शो अगले पीटीएम पर फिर से हो। अरे वाह, Superb, sir. Superb. Thank you. Actually. Okay. So sadly true. Yes, it's true. And with that, I would like to end the session for today. Thank you so much, everyone. And ये शायरी के साथ end किया बहुत ही अच्छा। Thank you.